Take a look at these questions that I'll just show you. This was asked in UPSC Prelims 2025. 3 statements are given. You have to tell which of the following are correct. First is capital receipts create a liability or cause a reduction in assets of the government. Second is borrowings and disinvestment are capital receipts. Next is interest received on loans creates a liability of the government. So you have to tell which of these statements are correct. Next question. This was asked in UPSC Prelims 2016. In 3 statements में से you have to tell which of the following is or are included in the capital budget of the Government of India. First is expenditure on acquisition of assets like roads, buildings, machinery, etc. Second, loans received from foreign governments. Next is loans and advances granted to states and union territories. इसमें से आपको options pick and choose करने हैं and you have to give the correct code. Next question. This was asked in UPSC CSE Mains 2021. It says, distinguish between capital budget and revenue budget. Explain the components of both these budgets. So, different years, different stages of the exam, but the underlying concept is exactly the same. That is, revenue account and capital account of the government budget. Hello and welcome to Shivanomics. In this video, we'll break down this classification clearly using UPSC questions so that you never get confused again. So let's start from the basics. There are 2 ways to present budget. First is this. यहाँ पे हमने बजट को क्लासिफाई किया into receipts and expenditure. उसके बाद receipts को further हमने क्लासिफाई किया revenue receipts and capital receipts. Similarly expenditure को revenue expenditure and capital expenditure. Now coming to the second way. Under this, budget is classified into revenue budget and capital budget, or you can say revenue account and capital account. उसके बाद revenue account is further divided into expenditure portion and receipts portion, that is revenue expenditure and revenue receipts. And similarly, capital वाले portion को हम classify करते हैं capital expenditure and capital receipts. अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों similar categorization ही show करते हैं, बस present करने का तरीका अलग है. For example, यहाँ पे हमने broadly पहले receipts और expenditure में classify किया, उसको further revenue और capital में किया है क्लासिफाई, और इस वाले पोर्शन में हमने पहले रेवेन्यू और कैपिटल में ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करी है, उसके बाद उनको एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स में क्लासिफाई किया है. सेकंड वाली क्लासिफिकेशन इज नॉर्मली फॉलोड. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द रेवेन्यू अकाउंट. द रेवेन्यू अकाउंट डील्स विद रूटीन recurring ट्रांजैक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है सारे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कि जब भी हम रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हैं तो यू मस्ट रिमेंबर कि इससे गवर्नमेंट के एसेट्स या लाइबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डील्स विद जस्ट रूटीन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, कि नॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं गवर्नमेंट की उनके साथ डील करते हैं. इसमें आपने अब रेवेन्यू अकाउंट एंड फॉर दैट मैटर कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, उसको हमने फर्दर बाइफोकेट किया है रिसीट्स में एंड एक्सपेंडिचर पोर्शन में. तो जब गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं दैट इज रिसीट साइड ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, और जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है मनी दैट इज एक्सपेंडिचर साइड. तो ये तो आई होप पहले से क्लियर होगा आपको, बट स्टिल बता दिया मैंने. अब हम क्योंकि पहले रेवेन्यू अकाउंट की बात कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स, तो रेवेन्यू रिसीट्स मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है. दिस कैन बी फर्दर बाइफोकेटेड इनटू टैक्स रिसीट्स या टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिसीट्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो अगर हम इसके एग्जांपल्स कंसीडर करें तो टैक्स वाले में जीएसटी आ जाएगा आपका, नॉर्मल इनकम टैक्स या कस्टम्स ड्यूटी एटसेट्रा. अगर नॉन टैक्स की बात करें, जो भी टैक्स को छोड़ के बाकी जहां से भी गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं दैट कम्स अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रिसीट्स. इसमें आ जाएगी आपकी रेवेन्यू लाइक इंटरेस्ट रिसीट्स, मतलब आपने किसी को लोन दिया हुआ है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है दैट कम्स अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स. डिविडेंड्स, गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं कंपनीज में, वहां से जो पैसा आता है उसको शेयर्स पे उसके, दैट इज डिविडेंड्स. फीस, डिफरेंट फी चार्ज करती है तो गवर्नमेंट अलग अलग सर्विसेज के लिए,
that also comes under revenue receipts. So let's talk about revenue expenditure now. Revenue expenditure, तो गवर्नमेंट जहां जहां पे खर्चा करती है, जहां पे उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसके एग्जांपल्स अगर हम कंसीडर करें, सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट देती है. नेक्स्ट इज सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है. अगला हो गया आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स, एंड देन योर नॉर्मल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. तो ये सारे आते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. तो अगर हम बात करें कि आइडिया इज रेवेन्यू अकाउंट डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. दे आर जस्ट मेंट टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, नॉट बिल्ड न्यू कैपेसिटी. एसेट्स लाइबिलिटीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, चाहे रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें. आगे जाने से पहले एक बार लेट्स टॉक अबाउट कि लोन्स में लोन कैपिटल अकाउंट में क्यों आता है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू अकाउंट में क्यों आती है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. सपोज एक बंदा है राम, उसके पास 100 रुपीज है जो वो शाम को दे देता है लोन पे. वो देता है ये 100 रुपीज फॉर पीरियड ऑफ 10 years और उसको हर साल मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 1%. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर में शाम उसको देगा इंटरेस्ट ₹1 क्योंकि 1% है. सेकेंड ईयर में भी वो उसको 1 रुपया देगा. थर्ड ईयर में 1 देगा. ऐसे करते करते 10th ईयर में 1 देगा, प्लस उसके जो ये ओरिजिनल 100 रुपीज थे ये वापस करेगा. तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया ₹10. तो टोटल 10 years में उसने ये 10 रुपीज क्या दिया है इंटरेस्ट, और जो उसके असली ये 100 रुपीज थे ये भी उसको वापस देने पड़ेंगे बाद में. तो ये जो उसने हर साल 1-1 रुपया करके 10 रुपीज टोटल उसको दिए हैं इंटरेस्ट पेमेंट. तो अगर ये उसने सारी दे भी दी तो असली ये 100 रुपीज जो है ये तो वैसे के वैसे पड़े हैं ना. मतलब इस 100 रुपीज पे उसको जो ये 10 रुपीज मिली है वो राम की रेवेन्यू होगी इस एसेट की. तो ये 100 रुपीज एक्टेड एज एसेट फॉर राम एंड श्याम के लिए हो गई ये लाइबिलिटी. और ये जो 10 रुपीज इंटरेस्ट है ये उसको इस एसेट के ऊपर मिला है राम को. तो इतनी बात आई होप इट इज क्लियर. उसके बाद अगर हम इसको कैपिटल अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट के टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो ये ₹100 राम के लिए हो जाएंगे. तो हम राम वाला रेड से लिख देते हैं. जो ये वाले ओरिजिनल 100 रुपीज हैं वो राम का हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमने बात करी थी एक्सपेंडिचर मतलब जब आप किसी को पैसे देते हो या गवर्नमेंट किसी को पैसे देती है. तो यहाँ पे राम ने दिए थे 100 रुपीज, तो ये आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों, हमने बात करी है जब भी हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो उसमें एसेट या लाइबिलिटी पे जरूर फर्क आएगा. अगर एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो दैट कम्स अंडर रेवेन्यू अकाउंट. तो दिस ओरिजिनल ₹100 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर राम एंड श्याम के लिए है ये कैपिटल रेवेन्यू. कैपिटल रेवेन्यू मतलब उसके पास पैसे आए हैं. कैपिटल अकाउंट में क्यों आया, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, उसको वापस करने हैं ना पैसे, तो उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई है इनसे. और अब जब हम इन 10 रुपीज की बात करें टोटल जो इंटरेस्ट में गए हैं हर साल 1-1 रुपया, तो ये ₹10 राम के लिए बनी है रेवेन्यू रिसीट और श्याम के लिए बने हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो आप इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं. आई एम श्योर इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू. आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इसका कंटेक्स्ट लेके आपको मैं अच्छे से दोबारा से समझा दूंगी एक बार. अब अगर हम कंपैरिजन करें लोन वर्सेस ग्रांट, आपने किसी को लोन दिया है 100 रुपीज या गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है तो वो आपको वापस पैसे मिलेंगे उसके. मतलब यहाँ पे जो ये 100 रुपीज था राम ने श्याम को दिया था, लोन दिया था, क्योंकि इसीलिए वो इसका एसेट था और इसकी लाइबिलिटी थी. सपोज आप किसी को पैसे दे देते हो कि ठीक है आप ले लो पैसे और आपको वापस नहीं करने, वो होगी एक तरह की ग्रांट.
तो अब अगर ये 100 रुपीज राम शाम को दे देता और बोल देता उसको वापस नहीं करने, तो शाम के लिए तो कोई लाइबिलिटी होगी नहीं, तो एसेट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये वाले 100 रुपीज आ जाते हैं आपके रेवेन्यू अकाउंट में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब क्योंकि ग्रांट से किसी के लिए लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही, मतलब जिसको पैसे मिल रहे हैं उसके लिए लाइबिलिटी नहीं है वो पैसे, तो एसेट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सो दैट वुड कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने अगर किसी को ग्रांट दी है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे ग्रांट गिवन। अगर कहीं से ग्रांट मिलेगी तो वो रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगी ऑब्वियसली। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव टू कैपिटल अकाउंट। हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो क्लियरली ये पता है हमें कैपिटल अकाउंट डील्स विद ट्रांजैक्शंस जिनसे एसेट्स या लाइबिलिटीज पर गवर्नमेंट की फर्क पड़ता है। अब एक और डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि कब एसेट इंक्रीज हुए, कब लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, कब लाइबिलिटीज कम होंगी। तो अगर हम कैपिटल रिसीट्स की बात करें, कैपिटल रिसीट्स, रिसीट्स मीन्स आपके पास पैसा आया है। पैसा आया है मतलब या तो आपने कहीं से बोरो किया है। अगर आपने कहीं से बोरो किया है तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं। और कैसे आ सकता है आपके पास पैसा? आपके पास शेयर्स थे किसी कंपनी के, वो आपने बेच दिए, मतलब गवर्नमेंट के पास सपोज एसबीआई के शेयर्स थे और उसने कुछ शेयर्स बेच दिए, तो भी आपके पास पैसा आएगा। हमें पता है कि जब भी हम रिसीट्स की बात कर रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर वो कहीं से बोरो कर रही है तो मतलब सपोज लोन ले रही है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर वो अपने सेल्स शेयर्स बेच रही है तो भी उसके पास पैसा आएगा, मतलब रिसीट्स में आएगा वो। यहाँ पे हो रहा है एसेट कम। तो जब भी हम रिसीट्स की बात करेंगे तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी और एसेट्स कम होंगे। और ऑब्वियसली लाइबिलिटीज और एसेट्स का लेना देना सिर्फ कैपिटल अकाउंट के साथ ही है। अब यहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात भी कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर का मतलब पता है आपको कि खर्च किए हैं गवर्नमेंट ने पैसे। मतलब अब अगर पैसे खर्च किए हैं गवर्नमेंट ने, सपोज रोड्स बिल्ड करे हैं गवर्नमेंट ने, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, तो उसमें पैसे खर्च किए हैं बट रोड्स बने मतलब गवर्नमेंट के अब एसेट इंक्रीज हुआ ना, तो वो आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और एक्सपेंडिचर कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? थिंक और एक्सपेंडिचर कैसे कर सकती है? सपोज गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया हुआ था और अब वो लोन उतार दिया, वापस कर दिया लोन। तो जब हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करते हैं तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स, तो वो करेगी तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हुई ना। आपको किसी के पैसे देने थे, आपने वो दे दिए, तो आपकी लाइबिलिटी कम हुई। तो आपको इस एग्जाम्पल से आराम से याद रहेगा, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि जब भी हम रिसीट्स की बात कर रहे हैं तो मतलब पैसे आने हैं हमारे पास। पैसे आने हैं, कैसे आएंगे? तो आपने कहीं से बोरो किया मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, या फिर आपने कुछ बेचा है अपना तो फिर आपके एसेट कम हुए हैं। तो कैपिटल रिसीट्स के केस में लाइबिलिटी इंक्रीज होगी और एसेट कम होएगा। और अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब आपने खर्चा किया है। अब अगर खर्चा किया या तो आपने एसेट बनाया होगा खर्चा करके, या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज आ गई। तो अब अगर हम कैपिटल रिसीट्स की बात करें, इसको हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं डेट या नॉन डेट। रिसीट मतलब मैंने अभी बताया पैसे आ रहे हैं, पैसे कैसे आ सकते हैं? आप बोरो भी कर सकते हो कहीं से, तो वो डेट वाले में आ जाएगा। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, सरकार अगर कहीं से पैसा ले रही है तो इसका मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल रिसीट्स में लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। इधर हम चेक करें, रिसीट्स में लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अगर हम नॉन डेट वाली बात करें तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में आ जाएगा आपका सेलिंग ऑफ शेयर्स इन पीएसयूज। पीएसयूज के आपने अपने कोई शेयर्स बेच दिए तो उससे आपके पास पैसे आ रहे हैं बट उससे आपके एसेट कम हो रहे हैं, तो ये आ गया नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में। तो नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे आ जाएगा रिकवरी ऑफ लोन्स। रिमेंबर जो ये वाला एग्जांपल था हमारा राम वाला, इसमें जो उसने 100 रुपीज दिए थे शाम को, उसके लिए वो एसेट था। अब जब उसको ये वापस मिल जाएंगे तो ये वाला एसेट उसका खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा कैपिटल रिसीट्स में। तो अगर हम बात करें सेलिंग ऑफ शेयर्स इन पीएसयूज, एसेट कम हुआ यहाँ पे, और रिकवरी ऑफ लोन्स में भी एसेट कम हुआ। ये 100 रुपीज उसके लिए एसेट ही थे ना यहाँ पे, क्योंकि वो हर साल उसको 1 रुपी की
क्या कर रहे थे, इनकम दे रहे थे, तो ये एसेट था उसके लिए। अब ये वापस आ गया, जब 100 रुपीज उसने बेसिक अमाउंट वापस मिल गया तो ये वाला एसेट खत्म। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आ जाएगा आपका बिल्डिंग ऑफ रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी बिल्डिंग पे जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है दैट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ मशीनरी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिमेंबर, राम के लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही था ना, एसेट ही था हमारे एग्जाम्पल में। तो अगर हम एसेट लायबिलिटी की बात करें, रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, मशीनरी बिल्ट हो रही है तो भी एसेट इंक्रीज हो रहा है, और लोन्स जो भी आप दे रहे हो किसी के लिए वो आपका एसेट ही बन रहा है ना, आपको उस पर हर महीने या हर साल इंटरेस्ट पेमेंट आएगी। सो द कोर लॉजिक इज कैपिटल ट्रांजैक्शंस affect the government's assets and liabilities, that is the government's balance sheet। तो जब भी गवर्नमेंट की एसेट्स या लाइबिलिटीज पे फर्क पड़ता है तो हम बात कर रहे होते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस या कैपिटल अकाउंट की, वरना नॉर्मल जब हम बात कर रहे हैं दैट इज रेवेन्यू अकाउंट। तो आपको ध्यान रखना है, रेवेन्यू अकाउंट मतलब रूटीन, रेकरिंग, no impact on assets and liabilities of the government। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे फर्क पड़ता है गवर्नमेंट की, और एसेट्स और लाइबिलिटीज पे कैसे फर्क पड़ता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया ये कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, उनकी बाइफर्केशन अगर उसको हम एक नॉर्मल फ्लो चार्ट में बनाएं so that would look something like this। government budget, ये आ जाएगा आगे, ये आप मेरे साथ बना भी सकते हो, रेवेन्यू बजट या रेवेन्यू अकाउंट जो भी आप लिखना चाहते हो, कैपिटल बजट या कैपिटल अकाउंट। तो रेवेन्यू वाले में आ जाएगा आगे रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो फर्दर क्लासिफाइड हैं टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। अब अगर कैपिटल बजट की बात करें तो वो आ जाएगा कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो आगे बाइफोकेटेड हैं, debt creating capital receipts and non debt creating capital receipts। इनके एग्जांपल्स हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं that were asked in UPSC। पीछे चलते हैं। So this was asked in UPSC prelims 2025। Consider the following statements: capital receipts create a liability or cause a reduction in assets of the government। अब हमें ये तो पता है कि जब भी हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो लाइबिलिटी या एसेट्स पे फर्क पड़ता है, बट यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ लाइबिलिटी एंड रिडक्शन इन एसेट्स कैपिटल रिसीट से। अब ये सपोज आपको एग्जैक्टली पेपर में याद नहीं है कि रिसीट्स में लाइबिलिटी क्रिएट होती थी और एसेट कम होते थे, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा होता था। यू डोंट हैव टू वरी, आपको आराम से सोचना है लॉजिक के साथ कि जब भी हम रिसीट की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास पैसे आने हैं, और जब भी हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो मतलब एसेट लाइबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। अब पैसे आने और एसेट लाइबिलिटी पे फर्क पड़ना है तो कैसे कैसे पैसे आ सकते हैं? मतलब आपने कहीं से लोन ले लिया, लोन लिया है तो मतलब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, आपको चुकाना भी तो है ना लोन वापस बाद में। और दूसरा कैसे पैसे आ सकते हैं अगर हम एसेट वाली तरफ से सोचें कि आपके पास कोई एसेट थे वो आपने बेच दिए। अब एसेट बेच दिए तो मतलब एसेट कम हो गए, तो गवर्नमेंट ने या तो लोन लिया है मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, या उसकी एसेट कम हुई है, अपने शेयर्स वगैरह बेच दिए, तो ये ऐसे हुई आपकी कैपिटल रिसीट। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ लाइबिलिटी, तो सही है। रिडक्शन इन एसेट्स, ये भी सही है। तो देखो आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ा, लॉजिक के साथ आपका आराम से ये सॉल्व होगी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स। अब हमने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कैपिटल अकाउंट की बात करी है हमने बताया हमें कि भाई लाइबिलिटी और एसेट्स पे फर्क पड़ेगा। अब जब भी आपने बोरोइंग करी है, जो ये हमने लोन वाला एग्जांपल लिया, बोरोइंग है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई,
डिसइन्वेस्टमेंट करी है, एसेट कम हुए, और इन दोनों में आपके पास पैसे आए हैं तो रिसीट है। तो बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब बड़े आराम से सोचिए, जो इंटरेस्ट अमाउंट है उससे क्या आपके एसेट या लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा था? अपने आम शाम वाला एग्जांपल सोचिए, सपोज आपको वो भी नहीं याद, आप आराम से सोचो कि आपने किसी को लोन दिया था और उसने आपको इंटरेस्ट पेमेंट दी है, तो आपके लिए क्या लायबिलिटी है? आपको उसको दोबारा वापस थोड़ी जाएगा वो इंटरेस्ट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये कहाँ पे आएगा? अब हमें ये तो पता चल गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, बट ये आएगा कहाँ? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स। राम शाम वाला एग्जांपल याद करो आप, उससे आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे राम को समझ लो आप गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने 100 रुपए दिए थे, ये रहा 100, इसके लिए वो एसेट था। अब इस पे जो उसको इंटरेस्ट मिला था ये 10 रुपीज, ये इसके लिए लायबिलिटी थोड़ी बन जाएगा। ये रेवेन्यू अकाउंट में आया था, ये कैपिटल अकाउंट में आता है। तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स है दैट कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है ये। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स कहां पे आएगा? गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स में। रेवेन्यू रिसीट में भी हमने आगे किया था टैक्स और नॉन टैक्स, ऑब्वियसली ये क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो क्लियरली इसका आंसर आ गया 1 and 2 ओनली। Now moving to next question. This was asked in prelims 2016. Which of the following is are included in capital budget of the government of India? First is expenditure on acquisition of assets like roads, buildings, machinery, etc. अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछा कि कैपिटल रिसीट में आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब कैपिटल बजट पूछा है सीधा। कैपिटल बजट तो मतलब हमें ये ध्यान रखना है बस एसेट पे फर्क पड़ेगा, लायबिलिटी पे क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बस ये देखना है आपको कि एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है तो कैपिटल बजट में आ गया। द एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, क्लियरली खुद ही लिखा है इन्होंने कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं आपके, तो ऑब्वियसली ये कैपिटल बजट में आएगा। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, अब आपने लोन लिया है तो मतलब आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई है आपको, क्योंकि वो लोन वापस भी करना है, तो ये भी आएगा आपका कैपिटल बजट में। नेक्स्ट इज लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड ड्यूटीज। लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए हैं स्टेट्स एंड ड्यूटीज को, आपने मतलब मेरा मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी आएगा आपका। अब इससे आपका आंसर तो आराम से निकल गया, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड 1, 2 and 3। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए कि हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया है वो आपको समझ आया है कि नहीं, थोड़ी और डिटेल में जाते हैं कि कैपिटल रिसीट्स में आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, तो आपने एक्सपेंडिचर किया मतलब आपने खर्चा किया है, तो ये आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे क्या हुआ है आपका? एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। यहाँ तो क्लियर ही था सब कुछ, तो आपको कोई दिमाग में लगाना पड़ा ज्यादा। तो यहाँ लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, लोन्स आए मतलब पैसा आया आपके पास, पैसा आया मतलब कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट्स में आया ये। अब कैपिटल रिसीट हमने याद करो 2 तरह की थी, डेट क्रिएटिंग या नॉन डेट क्रिएटिंग। तो लोन मतलब कर्जा ही हुआ आपके ऊपर, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो ये आ गया आपका डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, और यहाँ पे आपकी हुई है लायबिलिटी इंक्रीज। नेक्स्ट इज लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड ड्यूटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सीधा आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं मतलब एक्सपेंडिचर में आया है, तो आ गया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और यहाँ पे आपने लोन अगर किसी को दिया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो मतलब दैट लोन वुड एक्ट एज एन एसेट फॉर यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसेट इंक्रीज हुए हैं अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करके आपकी रिवीजन भी हो गई होगी। नाउ कमिंग टू दिस मेंस क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स। अब अगर हम जो हमने लास्ट में टेबल बनाया था, तो बेसिकली रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, उनके कंपोनेंट्स, यहाँ पे आप एग्जांपल्स वगैरह ऐड कर देंगे तो ब्रॉडली इससे आपका वो मेंस वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं जो भी हमने डिस्कस किया है, ब्रॉडली जब भी एसेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा तो हम कर रहे होंगे कैपिटल अकाउंट की बात, वरना नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंडिचर है वो होगा रेवेन्यू अकाउंट। उसके बाद जब भी पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास दैट इज रिसीट्स, और जब भी पैसे खर्च कर रही है गवर्नमेंट दैट इज एक्सपेंडिचर। So that's it for this video. Thank you so much for watching.